So students, our next topic is goal seek. So what is goal seek? First of all, goal seek is used when we want to set a target, and suppose we want to take any assumption, and in this case we will use goal seek in Kelsey. So let us begin with goal seek. So goal seek reverses the actual order of a formula. Usually you run a formula to get the result when certain arguments are entered. By contrast with goal seek, you work with the completed formula to see what values you need in an argument to get the results that you want. So अगर suppose मैंने simple interest calculate करना है तो उसमें मुझे principal, rate of interest और time period चाहिए. तो मैंने देखना कि अगर मेरे पास ये तीनों पैरामीटर्स हैं, उनकी वैल्यूज दिस तीनों मैंने ले ली, तो उस केस में मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा. सो गोल सीक इसका रिवर्स है, कॉन्ट्रास्ट है, कि अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास 1000 है, 1000 चाहिए मुझे, तो उसमें पैरामीटर्स कितने होंगे, उसमें वैल्यूज कितनी होंगी. So this is goal seek. So to take an example, imagine that the chief financial officer of a company is developing sales projections for each quarter of the forthcoming year. She knows that the goals company's total income must be for the year to satisfy stockholders. She also has a good idea of the company's income in the first 3 quarters because of the contracts that are already signed for the fourth quarter. However, no definite income is available. So how much must the company earn in Q4 to reach its goal? To answer, the CFO enters the projected earnings each each of the other 3 quarters and the projection for the entire year. Then she runs a goal seek on the cell for Q4 sales and receives her answer. तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल ली हुई है कि सपोज कोई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है कंपनी का, उन्होंने सेल प्रोजेक्शंस के लिए अपने कमिंग ईयर के लिए क्वार्टर्स डिवाइड किए हुए हैं. तो टोटल उसमें वो कितना Q4 में अर्न करे कंपनी की उनका जो गोल है वो रीच हो. Clear? So this we will do by goal seek. Clear? So goal seek में हम जो है रिजल्ट को लेके चलते हैं, उनकी वैल्यूज को देखते हैं, टारगेट रखते हैं और उनको अचीव करते हैं. सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी हुई है, मैंने आपको प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन में भी गोल सी की सिंपल इंटरेस्ट की एग्जाम्पल दी हुई है. सो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, हमारे पास है गोल सी की एग्जाम्पल. टू कैलकुलेट एनुअल इंटरेस्ट, क्रिएट अ टेबल विद द वैल्यूज फॉर द कैपिटल सी, नंबर ऑफ ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आई. सो फॉर्मूला हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो यहाँ पे हमारे पास C वी आर टेकिंग for simple interest for principal, then time period and rate of interest for I. Clear? So let us assume the rate of interest 7.5 है, हमारा 7.5% है, और जो हमारा annual return है that is $15,000. so हम जो capital principal value ले रहे हैं वो हम यहाँ पे जो use कर रहे हैं that is 1 lakh, number of years 1. Clear? And rate of interest we are taking 7.5. तो इसको हमने गोल सीक से यूज करना है कि अगर टारगेट वैल्यू मेरा है 15,000, कि अगर 15,000 मेरे पास मुझे चाहिए कैपिटल प्रिंसिपल अमाउंट जो है सिंपल इंटरेस्ट मुझे 15,000 चाहिए, तो जो उनकी वैल्यूज होगी कितनी होंगी. सो आई नीड टू क्लिक ऑन टूल्स, देन गोल सीक पे आप जाएंगे तो डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. डायलॉग बॉक्स में आपने फॉर्मूला सेल फील्ड पे क्लिक करना है जिसपे आपने टारगेट वैल्यू रखनी है. उसके बाद आपने वेरिएबल सेल फील्ड, जो वेरिएबल सेल फील्ड है उस पे क्लिक करना है जिसको आप चेंज करना चाहते हो. तो सपोज यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो मैं प्रिंसिपल का जो सेल रेफरेंस है वो नोट करूंगी, वो एंटर करूंगी. एंटर द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इन द टारगेट वैल्यू. फॉर एग्जांपल दिस वैल्यू इज 15,000, तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट हमारा 15,000 हो वो हम ले रहे हैं. क्लियर? सो यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो कि ऐसा हमारे पास डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. सो here we have simple interest, then time period and rate of interest, and in this B4 we are calculating simple interest by using the formula. So this is goal seek dialog box. Formula cell we have to write here. Suppose I am taking here B4. In B4 I am taking simple interest formula, so you need to enter this. Target value मतलब मेरा simple interest अगर 15,000 मुझे चाहिए, and variable cell I am taking B1 मतलब principal कितना हो अगर मेरा target value simple interest 15,000 है. Then you need to click on
ओके, क्लियर। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपको आपका गोल सीक का रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको रिजल्ट शो हो जाएगा कि दिस मच अमाउंट यू नीड एज अ प्रिंसिपल if you want your simple interest to be 15,000. Clear? So next we have using the solver. How we can use this solver? Again it is on tools option. So tools option पे जाके हम सॉल्वर को अचीव करेंगे। गोल सीक और सॉल्वर में सिर्फ यही डिफरेंस है कि सॉल्वर में बहुत सारे हमारे पास कंडीशंस वी कैन अप्लाई, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज द रिजल्ट, हम उसमें सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ कंडीशंस वी कैन अप्लाई in case of solver, but in case of goal seek we have only one condition. So you can see this solver dialog box. We have same as in goal seek target cell. Target cell हम स्पेसिफाई करेंगे जो भी आपका हो, जहां में आपने फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट का, उसमें ऑप्टिमाइज रिजल्ट आपको मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, वैल्यू यू वांट टू। सो यहाँ आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है बाय चेंजेस द सेल। किस सेल को आपने चेंज करना है। सपोज वी आर टेकिंग प्रिंसिपल, वी विल राइट सेल रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल हियर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव सम कंडीशंस, लिमिटिंग कंडीशन। सो अगर मुझे प्रिंसिपल इंटरेस्ट लेस देन इक्वल टू 13,000 चाहिए, 14,000, सो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ गोल सीक वी कैनॉट अप्लाई। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गोल सीक एंड सॉल्वर। क्लियर? So in this way we can use solver and goal seek. So this is our practice problems. So a student is planning her goals about the marks she should attain in the forthcoming semester 4 examination in order to achieve a distinction 75%, assuming that examination of each subject is for 100 marks. Her marks of the previous semesters are given below. So यहाँ पे semester 1, semester 2, semester 3 के marks given है, subject 1, 2, 3 के 4 के मार्क्स गिवन है। यहाँ पे आप उसने अपने जो टारगेट रखा है 75, मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगा के अपना टारगेट रखेंगे। उसके बाद जो अपने सेल को चेंज करना है कि उसमें क्या सेमेस्टर 1 में अगर मैं सब्जेक्ट 2 में कितने मार्क्स आएंगे अगर मैं 75% मार्क्स लेने हैं। तो स्टूडेंट्स आपने दिस वन अनसॉल्व्ड 1, 2 एंड 3 ये आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखना है। क्लियर? ये तीनों आपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपने करके देखनी है कैल्सी पे, ओपन ऑफिस कैल्सी या लाइबर ऑफिस कैल्सी। एंड आफ्टर सीइंग दिस practical implementation of solver and goal seek. In this video I will tell you how to implement goal seek and solver in OpenOffice Calc. So यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली हुई है गोल सीक की। क्लियर? तो ऑलरेडी आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। तो इसमें मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आई हैव टेकन 4, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने 1000 ली है, टाइम पीरियड 1 ईयर का लिए और सिंपल इंटरेस्ट मैंने इसको कैलकुलेट किया है फॉर्मूला लगा के। सो B5 में मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। सो वी विल डू गोल सीक हियर, हम यहाँ पे गोल सीक अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला सेल जो हमारा है दैट इज B5, टारगेट वैल्यू है हमारी 80, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 80, और वेरिएबल सेल है जो मेरा B1। सो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है B1 इंटू B2 इंटू B3 अपॉन 100। क्लियर? तो यहाँ पे गोल सीक हम इसलिए यूज करते हैं कि सपोज हम नॉर्मली कहते हैं कि अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 500 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो बट गोल सीक में हम ऑपोजिट लेते हैं। सपोज कि अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 500 तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। कि अगर मैंने ये क्वेश्चन राइज करना है, ऑपोजिट मैंने करना है कि मेरा टारगेट वैल्यू जो है सपोज 500 है तो कैसे। सो क्लिक ऑन टूल्स देन गोल्स, गोल सीक पे आपने क्लिक करना है तो आपको गोल सीक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो फॉर्मूला सेल आपने इसमें, फॉर्मूला सेल हमारे पास B5 है तो B5 ले रही हूँ, टारगेट वैल्यू मैंने 500 कि सपोज मेरा सिंपल इंटरेस्ट 500 मुझे चाहिए तो उस केस में मुझे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी तो वो मुझे पता करनी है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट का जो सेल रेफरेंस है दैट इज B1। तो B1 मेरे पास, मैं यहाँ पे वेरिएबल सेल ले रही हूँ, टारगेट वैल्यू मैंने 5 रखी है, टारगेट वैल्यू मैंने 500 रखी है और वेरिएबल सेल B1। तो क्लिक ऑन ओके, यू कैन सी हियर गोल सीक सक्सेसफुल, इंसर्ट रिजल्ट 12,500
500 इंटू करंट सेल। सो इसका मतलब हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें 12,500 रखनी होगी, तो ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट 500 आएगा। क्लियर? सो इस चीज में हम गोल सीक को यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो अगर सपोज मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे देखना है कि अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट इतना हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। क्लियर? तो वो भी हम गोल सीक के जरिए हम यूज कर सकते हैं, उसको टूल्स में हम जाके यूज कर सकते हो। तो क्लिकिंग ऑन टूल्स अगेन आई एम सिलेक्टिंग इट। सो सपोज मैं प्रिंसिपल अमाउंट 1000 ले रही हूँ दोबारा, उसके बाद गोल सीक पे गई तो फॉर्मूला सेल मेरे पास है B5 में ले रही हूँ, टारगेट वैल्यू मेरे पास 500। अब मैंने टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना होगा जब टारगेट वैल्यू जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है वो 500 हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ पे मैं जो वेरिएबल सेल है मेरा B2 ले रही हूँ। क्लियर? क्लिक ऑन ओके। सो यू कैन सी हियर इंसर्ट रिजल्ट 50। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट 500 होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 50। Clear? So in this way we can use goal seek. It is very important function of calci. Clear? So हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो in case कि if you want to achieve that particular target then you can use this। कि हमें टारगेट पता हो हमने इतना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम उनके जो पैरामीटर्स हैं वो हम देख सकते हैं। क्लियर? एक और टॉपिक है हमारे पास जो लास्ट कैल्सी का है, दैट इज सॉल्वर। तो सॉल्वर में हम यूज करेंगे, वो थोड़ा बहुत सेम ही है गोल सीक के। तो सॉल्वर में जो हम यूज करते हैं गोल सीक के टूल्स ही यूज करते हैं, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें भी हम जब कंडीशंस हमारे पास ज्यादा होती हैं वो यूज करते हैं सॉल्वर में, और गोल सीक में हमारे पास एक ही कंडीशन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू सॉल्वर। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो टारगेट सेल हमारा क्या है? B7। तो B7 पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। वैल्यू आपकी जो हो सकती है कोई भी वैल्यू और सेल हो सकती है, उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है और कोई भी सेल हो सकता है। और बाय चेंजिंग द सेल्स, by changing the cells in this example we will use principal amount। so ये सेम ही है जैसे गोल सीक में है, बट गोल सीक में हम एक ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्वर में वी कैन अप्लाई मोर देन वन कंडीशन एट अ टाइम। सो आई एम क्लिकिंग ऑन टूल्स हियर। सो टूल्स पे मैं जा रही हूँ, यहाँ पे आप एक सॉल्वर देख रहे हो। तो सॉल्वर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो टारगेट सेल जो मेरे पास है दैट इज B7। क्लियर? सो B7 पे मैंने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं जो मेरा टारगेट सेल है दैट इज B7, जिसको मैंने अपना टारगेट लेके चलना है। तो आई एम क्लिकिंग ऑन B7। तो B7 की आप मैक्सिमम मिनिमम देख सकते हो, आप सेट कर सकते हो कितना आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 500, मतलब 500 मेरा उसमें सिंपल इंटरेस्ट में आना चाहिए। क्लियर? फिर उसके पैरामीटर्स पे चेंज। तो वैल्यू ऑफ दिस इज 500। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाय चेंजिंग द सेल्स, बाय चेंजिंग द सेल्स में आपको B3 देना है। B3 मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। तो आप उस पर इफेक्ट देखना चाहते हो। सो यू कैन सी हियर 12,500 हमारे पास वही अमाउंट आ गई है कि अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 रखेंगे तो ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट 500 आएगा। क्लियर? अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन टूल्स। सो क्लिकिंग ऑन टूल्स, उसके बाद आप गोल सीक में देख सकते हो हमारे पास सिर्फ यही तीन वैल्यूज हैं, फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू एंड वेरिएबल सेल। क्लियर? एक ही कंडीशन है बट हम सो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्वर में कंडीशंस हैं वी कैन अप्लाई है। सपोज कि हमारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू 13,000 होना चाहिए, 14,000 होना चाहिए, ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कंडीशंस यू कैन अप्लाई इन सॉल्वर। सो स्टूडेंट्स read these topics Golsic and solver thoroughly and try to understand it and implement in OpenOffice Calc or LibreOffice Calc and try solver with these conditions. Okay, thank you.